So let us start question number 8. The first question, and it is now in order to prove this, let me take left hand side. So we have tan inverse square root of 1 plus cos x plus square root of 1 minus cos x divided by square root of 1 plus cos x minus square root of 1 minus cos x. And we have to show that it is equal to pi by 4 plus x by 2. So please everyone note down. सबसे पहला चीज यहां पे जो हम लोग को अप्लाई करना है वो है 1 plus cos x का फॉर्मूला. What is the formula of 1 plus cos x? It is 2 cos square x divided by 2. All right, everyone. The formula of 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. And the formula of 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. Same thing we will do in the denominator also. Then 2 is not a perfect square, so we can simply write root 2 into cos square x by 2 का square root. Cos square x by 2 का square root क्या होगा? Cos of x by 2 plus root 2 sin of x by 2 divided by root 2 cos x by 2 minus root 2 sin x by 2. Let us take root 2 common from the numerator and we will get cos of x by 2 plus sin of x by 2 by cos of x by 2 minus sin of x by 2. After this, everyone note down this formula which I am giving to you. Everyone just note down. And the formula is 1 plus tan A by 1 minus tan A, or cos A plus sin A by cos A minus sin A is tan of pi by 4 plus A. This is one formula. Second formula, 1 minus tan A by 1 plus tan A, or cos A minus sin A by cos A plus sin A is tan of pi by 4 minus A. This is the second formula. These are the two formulas. Now these two formulas were there in class 11, but it was as a sum. मतलब ये क्वेश्चन के तौर जैसा था, मतलब ये सम जैसे के तौर पे तुम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन अब हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने वाले. सो टेल मी एवरीवन, cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये वाला. a के जगह पे क्या है? x by 2. तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताओ एक बार? क्या मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बताओ एक बार? यस एवरीवन, tan pi by 4 plus x by 2. ठीक है, मतलब यहाँ पे a के जगह पे x by 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट tan of pi by 4 plus x by 2. You can just write down this formula on the right. मतलब राइट में ये रीजन दे सकते हैं ये फॉर्मूला. What is tan inverse of tan x? It is equal to x. And this is what we have on the right hand side as proved. So ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नया कंसेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे, बस अब वही जो चीज किया हुआ है उसी के टाइप का सम को बस सॉल्व करने वाला. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको पूरा को सिंप्लीफाई करके tan थीटा लाना, बिकॉज
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। इसके लिए मैंने क्या किया, 1 plus cos a का फॉर्मूला अप्लाई किया which is 2 cos square a by 2, 2 sin square a by 2, मतलब x है तो x by 2, ठीक है। अप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट इसका किया और रूट 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने ये स्टेप दिखाया नहीं, न्यूमरेटर में रूट 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में भी रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। इस दो को एज अ फॉर्मूला तुम लोग अपने कॉपी में कॉपी कर लेना। सो व्हाट इज cos a plus sin a by cos a minus sin a? इट इज tan of pi by 4 plus a। इस जगह पे अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूला से, a की जगह पे क्या है यहाँ पे x by 2, so it will be pi by 4 plus a means x by 2। okay everyone, now I want everyone to copy down this sum and try the next sum, that is okay, first copy down this sum and try the next sum, that is number 13। number 13 अभी try करके तुम everyone note down, these are the sums you don't have to do right now, okay? And the sums are 8 ka number 3 4, clear, 3 4 5, 3 sums, okay, 3 4 and 5। please don't do 3 4 and 5, 8 का। all right everyone, ये सारे sums तुम लोग को करना नहीं है, okay? now after this everyone will try question number 16 now। 13 के बाद नेक्स्ट सम करना है नंबर 16 एंड देन नंबर 15। नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट सम करना है पहले करना है नंबर 16 एंड देन नंबर 15। प्लीज डू these two sums, question number 8। Ready? So note down everyone, this sum, that is number 17, and the question is, sorry, number 16 I said, and the question, let's take left hand side, it is tan inverse cos x by 1 plus sin x, और यहाँ पे हम लोग को क्या शो करना है, that is equal to pi by 4 minus x by 2। now just note down everyone, सबसे पहले cos x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, sin of pi by 2 minus x, and sin x को cos of pi by 2 minus x। now what is the formula of sin a? anyone who can tell me sin a का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है? 2 sin e by 2 cos e by 2। it is 2 sin a by 2 to cos of a by 2, and what is the formula of 1 plus cos a? it is 2 cos square a by 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा चीज को a अज्यूम कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे sin a का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं which is 2 sin a by 2 a by 2 into cos of a by 2। let us apply 1 plus cos a का फॉर्मूला which is 2 cos square a by 2। 2 2 कैंसिल हो गया, एक फैक्टर cos का कैंसिल हो गया यहाँ से, देखो समझते हो ना, एक फैक्टर मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि x by x square है तो कैंसिल होके 1 by x बच जाएगा, वैसे ही cos, ये cos और ये cos square है, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin of। अब एक और बात बताना तुम लोग,
क्या मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स होल थिंग बाई 2 को क्या मैं पाई बाई 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इसको पाई बाई 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं मैं इसको? ठीक है, पाई बाई 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. What is sin theta by cos theta? It's tan theta. And also pi by 2 by 2 is pi by 4. और ये हो गया x by 2. This is what we have on the right hand side. ये हम लोग प्रूव करते हैं. Okay? Is this clear? इसके जस्ट बाद वाला सम भी 17 नंबर एकदम ऐसे ही है. 17 नंबर भी ठीक ऐसे ही है. cos को sin में कन्वर्ट करना, sin को cos में, और बस फॉर्मूला अप्लाई करना. ठीक है? Everyone copy it first. See, the first thing which I did is I expressed cos in terms of sin because cos theta is sin 90 minus theta and sin theta is cos 90 minus theta. Then I applied sin का half angle formula. Sin a क्या होता है? 2 sin a by 2 into cos of a by 2. 1 plus cos a क्या होता है? 2 cos square a by 2. 2 cancel हो गया. Cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया. इसके बाद sin theta by cos theta becomes tan theta. Okay. Now please try once everyone. The next one, that is number 15. Question number now 15. You note down. We have tan inverse a cos x minus b sin x divided by b cos x plus a sin x. And we have to show that it is equal to tan inverse of a by b minus x. Please everyone note down. So tell me everyone, formula है tan inverse x plus y by 1 minus xy, which is tan inverse x plus tan inverse y, और एक है tan inverse x minus y by 1 plus xy, which is tan inverse x minus tan inverse y. These are the two formulas. Please note down very carefully. देखो यहाँ पे tan inverse है, ठीक है? अगर मैं ये पूरा को tan में कन्वर्ट कर दूं, tan of something, so what is tan inverse of tan x? That will become x. All right, next. तो हम क्या करेंगे, ध्यान देने पर. तो हमारे पास दो चीज है. मुझे क्या दो चीज मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या मैं ये पूरा को tan में कन्वर्ट कर सकता हूं, और सेकंड चीज मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या मैं ये पूरा को चीज को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं. ये दो चीज मेरे दिमाग में आ रहा है. सो लिसन, एक बार इसके हिसाब से देखते हैं. इसके हिसाब से लिसन, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट वी हैव टू अप्लाई द सेकंड फार्मूला. व्हाई? बिकॉज़ ऊपर माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है. और मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आंसर tan के बीच में क्या है बताओ तो? माइनस है. मतलब क्लियरली सब कुछ हिंट दे रहा है हम लोग को कि मुझे इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस फॉर्म में लाने का फोकस करना चाहिए. अब मुझे बताओ तुम लोग कि डिनोमिनेटर के लेफ्ट में पहला टर्म क्या है बताओ? 1 है ना? अब ये 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं एक बार. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x से डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को b cos x से डिवाइड कर देते हैं. तो फिर इससे क्या होगा देखने एक बार.
a cos x by b cos x will become a by b minus b sin x by b cos x में b कैंसिल हो जाएगा, tan x आ जाएगा, by इसको इससे अलग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको इससे स्प्लिट करेंगे a by b into sin x by cos x कितना हो जाएगा, tan x। समझ में आया? देखो एक बार सबको, मतलब हम लोगों ने कोशिश किया पहले इस फॉर्म में लाने का। नाउ डू यू थिंक दैट हम लोगों ने इस फॉर्म में ला दिया? यस, प्लीज टेल मी एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now can I say that it is in the form? Can I say that it is in the form tan inverse x minus y by 1 plus x into y? And hence, what is the result? It is tan inverse x minus tan inverse y. Y is tan x. Tell me everyone, what is tan inverse of tan x? It is x. This is what we have on the right hand side. ठीक है, तो एक चीज मैंने क्या सोचा कि ये tan inverse है, तो चलो इस पूरा चीज को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, tan inverse है इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ऊपर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस था, इसलिए मैंने इसके हिसाब से सोचा। प्लस माइनस होता तो इसके हिसाब से सोचते, करना सेम ही चीज करना होता। करना क्या होता कि हमको वही उधर 1 लाने के लिए जो यहाँ पे होता है उस चीज से ऊपर नीचे डिवाइड करना। एक बार कॉपी करना फटाफट। Now see, the alternative method which I was talking about to express this entire function in terms of tan is a bit difficult. I mean, a bit complicated way. So this is, I leave it. I mean, we'll solve you one way only, okay? Because I don't want to confuse you. पहले एक बार एक मेथड से देखो, फिर अगर एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो आगे पूछ सकते हो तुम लोग, मैं बता दूंगा नेक्स्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा सम हो जाएगा, तुम लोगों को पता है कि ये 3 सम नहीं करना है, दैट इज 8 का 3, 4 and 5. Okay, now let's move on to the next question, that is number 6. So everyone wrote down question number 6, 8 का 6. So we have tan inverse square root of 1 plus x 1 minus x by square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x. And we have to show that it is equal to pi by 4 minus half cos inverse x. ठीक है, ध्यान देने पर देखो, सबसे पहला चीज मुझे इससे ये प्रूव करना चाहिए, इससे ये प्रूव करना चाहिए। आई बिलीव दैट थोड़ा सा हम लोग ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको लेके सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेटर है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉपी मत करना, यहां देखना सब। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x के जगह पे, जस्ट अ मिनट, listen here, from all the questions from 6 to number 12, 6 से लेके 12 तक जितना क्वेश्चंस है वहां पे हम लोग को x के जगह पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या ये बताओ तो, सब्स्टिट्यूशन, x के जगह पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसके जगह पे? साइन या फिर कॉस या फिर टैन या फिर सेक या फिर कॉसेक या फिर कॉट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है मैं तुम लोगों को इसका तरीका बताता हूँ। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, लिसन हियर केयरफुली। इसका मैं तरीका बताता हूँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, समझने का तरीका। एक बात बताओ तुम लोग, राइट हैंड साइड में इनवर्स फंक्शन कौन सा है? बस तुम इनवर्स फंक्शन का भी बात करो, कौन सा इनवर्स फंक्शन बताओ? cos इनवर्स x। ये अगर मैं सिर्फ cos इनवर्स x को थीटा लूं
तो फिर x क्या हो जाएगा बताओ? cos theta. तो मतलब हम लोग को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा cos थीटा। मतलब हमको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा देख के कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब हम x के जगह पे cos थीटा लगाएंगे। अब देखना, now what is the formula 1 plus cos a? 1 plus cos a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin square a by 2, I'm sorry, 2 cos square 1 plus cos theta का 2 cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2, 2 cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये ठीक अभी हमने थोड़ा देर पहले इस टाइप का सम किया था, बस वहां पे x था, यहाँ पे थीटा है, बस इतना डिफरेंस है। तो क्या मैं इसको रिड्यूस करके, इसको सिंप्लीफाई करके cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? देख चेक करो तो एक बार अपने अपने कॉपी में, प्लीज चेक कीजिए एवरीवन। समझ में तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट 2, इसका स्क्वायर रूट वैसे डिनोमिनेटर में, फिर रूट 2 कॉमन लेके काटे। अब बताओ तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है मैंने जो आज बताया था? यस, Yes, sir. क्या बताओ तो? 1 minus sin v by 1 plus tan is the formula. क्या है? Tan pi by 4 minus tan pi by 4 theta by 2. minus theta by 2, मतलब cos a minus sin a by cos a plus sin a is tan of pi by 4 minus a, tan inverse of tan x is x। एक बार पूरा सम अगर रिड्यूस हो गया, सिंपलीफाई हो गया, अब देखो ध्यान से एक बार सब, अगर मान लो x cos थीटा है, x cos थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर x cos Cos x. cos इनवर्स x, ये हो गया थीटा बाय 2 मतलब हाफ इनटू थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x, which is equal to RHS। एक बार कॉपी करो, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट कॉपी वन सेकंड, नोट डाउन एवरीवन, वन सेकंड नोट डाउन व्हाट आई हैव डन। इससे ये प्रूव करना या बोलो इससे ये प्रूव करना, मैं ये चूज किया, ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको रिड्यूस करना ज्यादा आसान है, तो मैंने क्या किया, x के जगह पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास कोई 6 में से एक ऑप्शन है, मतलब sin cos tan sec cosec cot, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? तुमको क्वेश्चन में हिंट पता रहेगा। राइट साइड में cos इनवर्स x है, तो अगर हम cos इनवर्स x को थीटा ले लें तो x क्या हो जाएगा? cos थीटा। ठीक, अब x की जगह पे cos थीटा बस सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये चीज जो है थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये सिंपलीफाई करके और ये फॉर्मूला अप्लाई कर, लास्ट में जब पूरा रिड्यूस हो जाए तो थीटा की जगह पे वापस से cos ले। सो कैन एनीवन टेल मी, एज जो मैंने तुम लोगों को समझाया उसके हिसाब से एक बार सबको ये पीडीएफ निकालना। अब बताओ एक बार नंबर 7 में हम लोग क्या किसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ तो एक बार। ओके फाइन, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, चलो। So x is cos theta. वेरी गुड, कैसे? सबको एक बार अपने अपने क्वेश्चन को फॉलो करना, ठीक है, बुक में मैं यहाँ लिख दूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब cos इनवर्स x स्क्वायर अगर मान लो थीटा है तो फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos थीटा, मतलब हम लोग x स्क्वायर की जगह पे cos थीटा लगाएंगे, ठीक है ना? इज दिस क्लियर? अब बताओ तुम लोग नंबर 8 में कहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हम लोगों ने, राइट साइड देख के बताओ तो कहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यस, x की जगह पे Sec. यस, x की जगह पे क्या लगाना है? sec थीटा।
नंबर 9 क्या होगा बताओ तो, नंबर 9 में ठीक से देख के बताओ, लिख के देखो एक साइन इनवर्स x बाई ए। तो अगर मान लो साइन इनवर्स x बाई ए अगर थीटा है, x बाई ए क्या x होगा? by a equal to sin theta. x इक्वल्स टू X by a equal to sin theta. मतलब x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, मतलब x इक्वल टू क्या है, a sin थीटा A बोल सकते sin हैं, theta. ठीक है ना। एक काम करो सबको, ये वाला सम अभी करो, ये वाला सम अभी तुरंत करो एवरीवन, ठीक है। ये वाला नंबर कौन सा है, ये वाला सम नंबर 8, सॉरी नंबर 9। So everyone note down the sum that is sum number 9. You have got down, please note down number 9. I'm taking left hand side. You have to show that it is equal to sin inverse x by a. Now what to substitute at the place of x? I said you are taking left hand side. You always take the expression which is bigger, थोड़ा ज्यादा जो complex form। तो जो राइट साइड में जो इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा ले लेंगे। x by a हो गया sin थीटा, x हो गया a sin थीटा। So putting x equals to a sin theta. x की जगह a sin थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लेना, बच जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। What is 1 minus sin square theta? This cos square theta. What is square root of a square cos square theta? It is a cos theta. A cancel हो गया, sin theta by cos theta is that. तो tan inverse of tan theta is theta, और थीटा की जगह पे वापस से रिप्लेस कर दो। तो सेम वैसे उल्टा जाना, अगर x इक्वल टू a sin थीटा है, x by a इक्वल टू sin थीटा, तो फिर थीटा क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ x by a। This is what we have on the right hand side. Okay. After this, I had asked you all to do sum number 12. अच्छा सम नंबर 12 हुआ तुम लोग से, कौन सा लिया बताओ तो तुम लोग, मतलब राइट साइड से सॉल्व करें या लेफ्ट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड। बताओ तो राइट हैंड साइड में कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया तुम लोग? तो x के tan से लगाया, इसके जगह tan स्क्वायर थीटा। क्यों बताओ तो? क्योंकि tan इनवर्स रूट x अगर थीटा होगा तो रूट x हो जाएगा tan थीटा, स्क्वायर बोथ साइड से x इक्वल टू tan स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, ओके। जिसका नहीं हुआ वो भी देख लेना है। 12 we have tan inverse root x half cos inverse 1 minus x by 1 plus x. So I am taking right hand side. अब मैंने जो ट्रिक बताया था उसके हिसाब से इसकी जगह क्या पुट करना, तो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स रूट x को थीटा लेंगे, तो रूट x हो गया tan थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
ये फॉर्मूला ही होता है इसका cos 2 थीटा का. What is cos inverse of cos 2 theta? It is 2 theta. 2 कैंसिल हो गया थीटा. अब वैसे ही अगर x tan स्क्वायर थीटा है तो फिर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा अगर x है तो tan थीटा होगा रूट x, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स रूट x. So we find that this number, that is 8, is done, and I repeat once again, number 8 ka 3, 4 and 5 you don't have to do, rest all the sums you will have to do. And there is a correction in number 17, please everyone, no sorry, number 18, please everyone do that. There is a correction in number 18, and the correction is sin inverse होगा वो, हाँ, sin inverse 2x by 1 plus x square. पहले तो वहां पे साइन इनवर्स मिसिंग है और दूसरा यहाँ पे माइनस साइन है, वो प्लस हो. ओके, यू आर कंप्लीट दिस. थैंक यू एवरीवन.